Good afternoon. Last class we completed up to capital gain on distribution of assets by company on liquidation. So from today we will start when the company buys back its own securities. Company buying back its own security means, suppose there are 10,000 shareholders of company, 10,000 shareholders of company, and everyone is having, suppose the capital is 100. So 10,000, 10 lakh is the share capital. This is the share capital of a company. That means these 10,000 shares are divided among the shareholders of the company. There can be a shareholder who is having 2 shares, there can be shareholder who is having 5 shares, 100 shares, 500 shares, whatever. The total count of shares of the company is 10,000 and the capital is 10 lakh. Now buying back means company comes with an option that it will buy back 20% of its shares. 20% of shares means 2,000 shares will be bought back by the company. Now when the shares are bought back by the company, at that time company pays an amount to the shareholders. Obviously it is again buying back, means when the shareholders purchase the shares, they pay to company an amount, but now when company will buy back its own shares, then company pays the amount. So for this amount which is being paid by company becomes the share consideration for the company. Share consideration means the consideration which is paid by the company for buying back its shares. So buyback, this was the concept of buying back of shares. Here in capital gains what we have the next topic which includes buying back of securities. Same concept as it is with shares, same concept is with securities. The only difference is these are not shares. It can be anything but other than shares. So securities are being bought back. So sale consideration amount received by security holder, obviously when the company is selling the shares, at that time sale consideration is seen for company. But in this case, shareholder becomes the seller because company shareholder से अपना ही securities वापस खरीद रही है. This section is for securities other than shares. जैसे आप लोग normal buyback का sums किया होगा shares related, same concept यहाँ पे है जहाँ shares की जगह सिर्फ securities है. And everything is same. Cost of acquisition will be as usual, taxable in the year in which securities are purchased. Obviously, when you will get the money at that year only, it will be taxable. कभी भी कोई भी tax तभी लगता है जब आपको वो income earn हो. तो income आपका कब earn हो रहा है? In the year in which it is purchased. तब वो आपको shares देगा. Okay, sale consideration and shall be treated as under. In case of buyback of shares, any income or capital gain in hand of shareholder is exempt under section 1034A. However, company listed or unlisted has to pay an additional tax at the rate of 20% plus surcharge and cess. मतलब अगर सिक्योरिटीज का बात हो रहा है तब आप देखिए सिक्योरिटी होल्डर जो है उसके हाथ में कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन है. बट व्हेन शेयर्स आर बॉट बैक, कंपनी जब शेयर्स बाय करेगा अपना शेयर होल्डर से, तो वो जो इनकम होगा शेयर होल्डर को, बिकॉज द अमाउंट व्हिच विल बी पेड बाय कंपनी फॉर द रिस्पेक्टिव शेयर्स. सपोज 100 का शेयर का एट प्रीमियम बाय करता है कंपनी 10%, 110. किसी के पास 50 शेयर्स है तो ये 5,500 जो इनकम होगा किसी शेयर होल्डर को, तो यहाँ पे ये शेयर
होल्डर होना पड़ेगा, इट शुड बी शेयर नॉट सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी है तो आपको जो कैपिटल गेन्स का प्रोविजन है वो फॉलो करना है, लेकिन अगर शेयर है तो इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। एंड जब हम एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाया था तभी भी बोला था जो 10 सबसेक्शन 10 वाला चैप्टर सेक्शन है ना, उसमें सिर्फ एग्जाम्पशंस कौन सा इनकम एग्जाम्प्ट है नहीं है वही रिकॉर्डेड है, और भी एग्जाम्पशंस आर देयर। इसीलिए सी थ्रू आउट टाइम सेक्शन 10 जो आपका एक चैप्टर है एग्जाम्प्ट इनकम वो कवर होते जा रहा है। 10 में जो जो कवर हो रहा है वो आपका वही चैप्टर का पार्ट है। This is about the securities which are bought back. Next, transfer in case of total or partial partition of HUF. Any distribution of capital assets in kind by HUF to its member is not treated as transfer. ये हम लोग जब ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़े थे कि विच इज नॉट ट्रांसफर, उसमें भी पढ़ा था जब पार्टीशन हो रहा है और एचयूएफ अपना मेंबर्स में जितना भी एसेट है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। बट सपोज जो एचयूएफ का मेंबर है वो जब ट्रांसफर करेगा तब तो ट्रांसफर माना जाएगा। ये एक एचयूएफ है, इसके पास बहुत सारा एसेट्स है, ये अपना एसेट मेंबर्स को दे दिया। नाउ दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं है, लेकिन ये मेंबर्स अलग अलग एसेट जब सेल कर रहा है दिस इज ट्रांसफर। तो यहाँ से यहाँ आने से ट्रांसफर नहीं होता, बट यहाँ से यहाँ आने से ट्रांसफर होगा। जब मेंबर्स ट्रांसफर करता है तब आपका कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल है। अब कैपिटल गेन्स कैसे एप्लीकेबल है, इसका नॉर्मल है सेल कंसिडरेशन जो होगा वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आप जब खरीदे, आपको जब दिया गया था वो एसेट, तब वो कैपिटल गेन्स में ट्रांसफर नहीं माना गया था। दैट मींस यू डिड नॉट पे एनीथिंग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए निल है। But what cost of acquisition you will take? You have to take the cost of acquisition which was for HUF. HUF उस एसेट को कितना में खरीदा वो आपका cost of acquisition बन जाएगा। It will be deemed to be your cost of acquisition. तो आप उसको उस acquisition से sale consideration से minus करेंगे। See, cost of acquisition में member hold such asset. Suppose ये इसको जो transfer किया, ये वाला एग्जाम्पल आई एम डूइंग इन नेक्स्ट पेज, ये इसको जब ट्रांसफर किया 2 अप्रैल 20, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप यहाँ से लेंगे, बिकॉज जब आपका एचयूएफ से आप ट्रांसफर किए थे तब वो आपका होल्डिंग उसमें नहीं काउंट होगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ ट्रांसफर। आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास वो एसेट कब से है, यहाँ से। इसके पहले आपके पास वो एसेट नहीं था। दैट मीन्स फॉर यू एक्विजिशन डेट इज 2 अप्रैल। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट when the actual improvement expenditure was incurred. Improvement expenditure आपको लेना पड़ेगा जब आप improvement करते हैं। Suppose you are selling it without any improvement, तो आपका improvement expenditure नहीं। कोई इम्प्रूवमेंट अगर नहीं है उस एसेट में तो कुछ नहीं होगा। लेकिन नेचर ऑफ एसेट आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, ये सेल करके ये ट्रांजैक्शन जब ये मेंबर बाहर किसी को सेल कर रहा है वो एसेट, तब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा ये जो एसेट सेल कर रहा है ये एसेट आपके पास कितना दिन था। दैट मीन्स यू शुड काउंट फ्रॉम 2 अप्रैल जिस दिन यू अक्वायर्ड। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू टेक द पीरियड ऑफ एचयूएफ आल्सो। ये एचयूएफ के पास कितना दिन था वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आपके पास आया ऑन 2 अप्रैल, स्टिल उस एसेट का एग्जिस्टेंस 2 अप्रैल के पहले से है बाय द एचयूएफ। तो एचयूएफ के पास वो एसेट बहुत दिन से है, इसीलिए आपको वो पीरियड ऑफ होल्डिंग वो भी पीरियड लेना पड़ेगा, प्लस द पीरियड जब तक यू आर होल्डिंग द एसेट। तो ये दोनों पार्ट, बिफोर एक्विजिशन आफ्टर एक्विजिशन,
दोनों आपको अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने में इंक्लूड करना पड़ेगा। Withdrawal of exemption in case of transfer by holding company to its 100% सब्सिडियरी। हम लोग पढ़ा था कि जब 100% सब्सिडियरी को अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपना कोई एसेट ट्रांसफर करता है या वाइस वर्सा, मतलब अगर 100% सब्सिडियरी अगर होल्डिंग कंपनी को कुछ ट्रांसफर करता है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं मानते। बट देयर वर सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं रहता है तो आपका वो ट्रांजैक्शन में कैपिटल गेन्स लग जाएगा। देयर आर सम कंडीशंस व्हिच यू हैव टू फुलफिल, इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दोज कंडीशंस तो आपका वो एग्जेम्पशन विल बी विथड्रॉन। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एग्जेम्पशन विथड्रॉन कब, जो एग्जेम्पशन मिला था कि 100% सब्सिडियरी को अगर आप ट्रांसफर करें तो वो आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये एग्जेम्पशन या ये बेनिफिट। क्योंकि ट्रांसफर अगर नहीं मान रहे आप तो आप कैपिटल गेन्स में भी नहीं फॉल कर रहे हैं, यू आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। तो ये एक बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। दिस बेनिफिट विल नॉट बी गिवन टू यू व्हेन समथिंग ऑफ दीज थिंग्स हैपन। क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और ये कब हो रहा है, पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जिस दिन कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया 100 होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडियरी, सपोज ऑन 2 2020 को होल्डिंग कंपनी अपना 100% सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करता है, 100% सब्सिडियरी को कोई एक एसेट ट्रांसफर करता है। नाउ ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडियरी कंपनी क्या करेगा, सब्सिडियरी कंपनी यहाँ से लेके 8 years तक इस एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। 8 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। नाउ कीप इट इन माइंड, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, ऐसा भी प्रोविजन लिखा रहता है कि उस तब अपने उस फाइनेंशियल ईयर एंड से काउंट करते हैं। बट यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है वहां से 8 years तक जो सब्सिडियरी कंपनी है वो उसको स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इट हैज टू कीप इट एज कैपिटल एसेट, मतलब जिस फॉर्मेट में आपको रिसीव हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा। एंड द सेकंड कंडीशन इज सपोज होल्डिंग कंपनी ceases to have 100% होल्डिंग। अब होल्डिंग कंपनी का क्या, सपोज 100% होल्डिंग है, मतलब अगर इस सब्सिडियरी कंपनी का 10,000 शेयर्स है तो ये सारा 10,000 शेयर्स किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास, तभी ये 100% सब्सिडियरी हुआ। सपोज विद इन 8 years, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके 8 साल में होल्डिंग कंपनी 2% होल्डिंग सेल कर देता है। मतलब अब होल्डिंग कंपनी के पास कितना शेयर्स है, ओनली होल्डिंग कंपनी के पास कितना शेयर्स है, ओनली 98%। 2% वो क्या किया, सेल कर दिया। अगर विद इन 8 years 2% शेयर्स वो सेल कर देता है तो फिर उसका होल्डिंग कम गया फ्रॉम 100%। देन ये जो ट्रांसफर हुआ था 100% सब्सिडियरी सोच के ये ट्रांसफर हुआ था और इसके वजह से यहाँ एग्जेम्प्ट हुआ था, ये ट्रीट होगा एज गेन्स, इस पे वापस कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए 8 साल तक, ट्रांसफर के बाद 8 साल तक आप इसको अपना होल्डिंग से बेच नहीं सकते। इफ यू सेल योर होल्डिंग तो फिर आप अगर 1% सेल कर दो, एनीथिंग यू सेल 0.1% पे अगर सेल, मतलब 10,000 से अगर आपका एक शेयर भी कम जाता है एंड इट डज नॉट रिमेन 10,000, मतलब 100% होल्डिंग अगर नहीं रहेगा तो आप फिर उस एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे।
100% रिलेशनशिप ceases to exist, मतलब 100 से अगर थोड़ा भी कम हो गया तो फिर आपका ये एग्जेम्पशन हट जाएगा जो आपको मिला था। The amount of profits and gains arising from transfer which was not charged, जो पहले चार्ज नहीं किया गया था, shall be deemed to be income chargeable under the head capital gains, और वो अभी जिस साल ये काम हुआ है उस प्रीवियस ईयर में चार्ज हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओके, ट्रांसफरर कंपनी मतलब द वन हु इज होल्डिंग कंपनी इज द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी कंपनी मतलब इसका जो सब्सिडियरी है ये हो गया ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा वो आपको बताया है ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी में। सी कन्वर्शन ऑफ सच एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप 8 साल में विद इन 8 इयर्स कभी भी अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड बना लेते हैं तो ट्रांसफरर कंपनी को जो एग्जेम्पशन मिला था वो खत्म हो जाएगा, और ट्रांसफरी कंपनी में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, वो प्रोविजन जो हम लोग पढ़े थे इन दी सेक्शन कन्वर्शन ऑफ कैपिटल हेड्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हम लोग वहां जो पढ़े थे कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वो वाला सेक्शन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज वो एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड। सपोज अगर उसका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, मतलब cessation of 100% relationship at any time, मतलब अगर वो अपना शेयर होल्डिंग बेच देता है, नाउ शेयर होल्डिंग अगर वो बेच दे तो इसमें ट्रांसफरिंग कंपनी इज नॉट एट फॉल्ट। ट्रांसफरिंग कंपनी इसमें क्या कर सकता है, अगर वो उसका शेयर बेच दे किसी और को, वो तो कुछ नहीं कर सकता। ट्रांसफरिंग कंपनी से सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी जो करेगा वही करेगा। 98% होल्डिंग अगर अभी भी है तो ट्रांसफरिंग कंपनी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ट्रांसफरिंग कंपनी में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रांसफरिंग कंपनी में सिर्फ तभी टैक्स ट्रीटमेंट है जब कैपिटल गेन्स आपका जब आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर रहे हो तब आपका ट्रांसफरिंग कंपनी इज एट फॉल्ट, इसीलिए उसको एक टैक्सेशन के पर्व्यू में लाया जा रहा है। बट जब होल्डिंग कंपनी अगर अपना शेयर में से कोई एक पार्ट बेच देगा तो तब ट्रांसफरिंग कंपनी का कोई उसमें करने का नहीं है। सो दैट्स व्हाई ट्रांसफरिंग कंपनी के लिए कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ सपोज अब ये जो बेचने का काम हुआ और एग्जेम्पशन मिला, ये सपोज हुआ था इन द फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 में हुआ था। नाउ इससे 8 साल तक अगर आप जाए तो आपके पास 2028 तक टाइम है। नाउ यू हैव द लॉक इन पीरियड इज स्टिल 8 इयर्स, 2028 8 साल आपको रुकना पड़ेगा। अब इस 8 साल में ये काम कभी भी हो सकता है। सपोज दिस थिंग हैपेंड कि कोई भी दोनों में से कोई एक चीज, या तो वो अपना कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में, या वो अपना होल्डिंग कंपनी अपना शेयर होल्डिंग बेच दिया, हैपेंड इन द ईयर 2026। अब यहाँ से आई एम गोइंग नेक्स्ट पेज। सपोज 2026 में उसका वो क्या किया, वो अपना 100% होल्डिंग में से 2% होल्डिंग बेच दिया। अब व्हाट हैपेंड, ये आप ट्रांसफर करके एग्जेम्पशन किस साल लिए थे, सपोज 2021 में एग्जेम्पशन दिए थे। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर कोई कैपिटल एसेट वाज गिवन बाय 100% होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडियरी, तो आपका एग्जेम्पशन का बेनिफिट 2021 में मिला था। आप उस हिसाब से रिटर्न फाइल कर दिए थे, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया था एंड दैट ईयर वाज क्लोज्ड। फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज हो गया। नाउ फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आके आप ऐसा कुछ कर दिए कि वो एग्जेम्पशन अब आपको नहीं मिल सकता। नाउ यू हैव नो राइट टू चेंज योर रिटर्न्स, वो आपका तो प्रोसेसिंग होके क्लोज हो गया है। नाउ अब आप उस रिटर्न को जो आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट चेंज तो करना पड़ेगा बिकॉज आपको जो एग्जेम्पशन उस टाइम में मिला था वो एग्जेम्पशन को नहीं लेना है एंड इट विल बी चार्ज्ड एज कैपिटल गेन्स। तो कौन चेंज करेगा,
तो असेसिंग ऑफिसर्स कैन चेंज इट। असेसिंग ऑफिसर के पास 4 साल रहता है। 4 साल तक अगर ऐसा मतलब जिस दिन ये हुआ उस फाइनेंशियल ईयर्स के 4 फाइनेंशियल ईयर्स तक वो चेंज कर सकता है। अब 2026 से 2027 का एंड से 31 मार्च 2027 का एंड से 4 इयर्स 28, 29, 30, 31 2031 तक एओ के पास राइट है टू चेंज योर रिटर्न। आपका रिटर्न जाके एओ चेंज कर सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, where the assessment of assessee has already been completed, AO has the power to rectify the income of assessee at any time before the end of 4 years. या सपोज इसमें ये भी हो सकता है 26-27 में जब आप ऐसा कुछ कर लिए, सपोज 2% शेयर्स बेच दिए, बट आपने अपना रिटर्न में ये काम नहीं किया कि वो साल का जो एग्जामिशन मिला था, अब वो आप इस साल में आपको इनकम दिखाना चाहिए था, आप वो इनकम नहीं दिखाए एंड यू प्रोसेस्ड योर रिटर्न, असेसमेंट भी उसका कंप्लीट हो गया, तो एओ के पास राइट है, तो भी एओ के पास राइट है कि वो 4 साल में आपका रिटर्न रेक्टिफाई करे और आपसे टैक्स ले। तो एओ कैन रेक्टिफाई योर रिटर्न्स फॉर विदिन 4 इयर्स। 4 साल में वो कभी भी आपका रिटर्न रेक्टिफाई कर सकता है। Cost of acquisition in the hands of transferee company. In case the exemption has not been withdrawn, cost of acquisition shall be the cost. अब exemption अगर नहीं withdrawn है, exemption मतलब जो आपका 8 साल तक आप कोई गलती नहीं की है, कुछ नहीं की है, तो आपका exemption withdraw नहीं होगा। अगर exemption withdraw नहीं होगा मतलब ये ट्रांसफर कंसिडर नहीं किया जाएगा, और ट्रांसफर नहीं कंसिडर किया जा रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ट्रांसफरी कंपनी के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो ट्रांसफर कंपनी है उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही होगा, सेम एज योर एचयूएफ, क्योंकि आप अगर ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यू डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर दैट एसेट, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपके लिए कुछ नहीं है। बट सपोज दिस एग्जामिशन इज विथड्रॉन, the cost of acquisition of transferring company shall be the actual cost at which, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट जो ट्रांसफरिंग कंपनी को पे करना पड़ता वो एसेट एक्वायर करने के लिए, वो कॉस्ट आप एक्चुअल एक्विजिशन के लिए लेंगे फॉर ट्रांसफरिंग कंपनी। मतलब अगर एग्जामिशन विथड्रॉ नहीं होता तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड हैव बीन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, लेकिन अगर आपका एग्जामिशन विथड्रॉ हो जाता है तो एक्चुअल कॉस्ट जो ट्रांसफरिंग कंपनी पे करता वो आपको लेना पड़ेगा एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ इस पे एक सम है, let me discuss that sum. H Limited acquired 100% holding interest being 50,000 shares in SPS Private Limited, मतलब H Limited holding company हो गया और S Private Limited subsidiary company हो गया। H Limited क्या किया है? 100% होल्डिंग लिया है, मतलब S Private Limited का 50,000 शेयर्स है और वो पूरा 50,000 शेयर्स H Limited के पास है, और वो कितना में लिया है? 10 लाख रुपया में। ऑन 10th December 2002, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 का बात है ये। ऑन 7th March 2015, ओके, मतलब फाइनेंशियल ईयर 14-15, H Limited transferred its land. लैंड क्या होता है? कैपिटल एसेट। अब वो लैंड को ट्रांसफर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका कितना था? 2 लाख रुपया, व्हिच वाज एक्वायर्ड ऑन 5th May 2004। तो एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है टू एस लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी जिसका 100% शेयर्स है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? एस लिमिटेड को एक कैपिटल एसेट, और ये एस लिमिटेड इंडियन कंपनी है फॉर 9 लाख रुपीज। ओके, 31 March 2021। नाउ सी ये ट्रांसफर कब कर रहा है? 7th March 2015। 7th March 2015 मतलब फाइनेंशियल ईयर 14-15। 14-15 में वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका लॉकिंग पीरियड 14-15 से स्टार्ट होता है फॉर 8 इयर्स।
ओके, बट व्हाट हैपेंड 31 मार्च 2021 को ही, मतलब इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वो कितना परसेंट शेयर्स अपना बेच रहा है? 1000 शेयर्स वो बेच दिया। 1000 शेयर्स वो बेच दिया, मतलब 50,000 में से 1000 शेयर्स, अब उसके पास सिर्फ 49,000 शेयर्स है, ओनली 1000 शेयर्स ही सोल्ड। स्टिल उसके पास अब 100% होल्डिंग तो नहीं रहा, कुछ भी एक शेयर भी अगर वो बेच देता तो भी उसके पास 100% होल्डिंग नहीं रहता। Now you have to do your tax treatment. Any transfer of capital asset to its 100% subsidiary or vice versa को कैपिटल गेन्स नहीं होता, मतलब वो लैंड कौन सा साल में ट्रांसफर किया? ऑन 14-15, तो उस ट्रांजैक्शन को अपने कुछ नहीं देखेंगे बिकॉज वो ट्रांजैक्शन आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो कैपिटल गेन्स में नहीं आता। ठीक है, अब उसमें से क्या है, 8 इयर्स तक आपको 100% रिलेशनशिप अगर सीजेस टू एग्जिस्ट तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन दिस केस ऐसा ही हुआ, 100% रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 के लिए क्या करेंगे? Computation of capital gains in the hand of H Limited in assessment year 15-16. 15-16 का क्या होगा? C या in which the transfer took place accordingly tax treatment. 15-16 का यहाँ पे tax treatment दिखाया है। क्या टैक्स ट्रीटमेंट दिखाया? सेल कंसिडरेशन 9 लाख रुपीस, मतलब वो लैंड बेचा 9 लाख में और उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 2 लाख। ये 2 लाख रुपीस आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ। This should have been the situation for which assessment year 15-16. ये अब सिचुएशन हो जाएगा 15-16 का। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफर कर चुके हैं विद इन 8 इयर्स, बट आप जाके अब इसको ठीक नहीं कर सकते। 15-16 का रिटर्न आप अब ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे 15-16 का वर्किंग दिखा के assessing officer may rectify the income at any time before the end of 4 years from 1/4/2021, because your financial year ends on 31st March 21 को ये काम हुआ, तो इसका नेक्स्ट डे 1/4/21 से 4 साल में असेसिंग ऑफिसर कभी भी ये चीज करेक्ट कर सकता है। जो आपका एक्चुअल असेसमेंट ईयर 15-16 है वहां पे ये पोजीशन होना चाहिए था, which will be rectified by AO within 4 years। ठीक है, ये 15-16 का हो गया। और 21-22 में क्या है, वो जो 1000 शेयर्स वो बेचा था, वो 1000 शेयर्स का आपको वर्किंग दिखाना पड़ेगा। सो दे आर शोइंग टू वर्किंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों वर्किंग को 2021 में मत दिखा दीजिएगा। एक 15-16 का वर्किंग है जो एओ ठीक करेगा, और आप 2021 में जो अपना शेयर्स का ट्रांजैक्शन है उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। So there are two workings for two transactions which happened in which actually only one transaction happened in 2021, but वो ट्रांजैक्शन की वजह से जो आपको 14-15 में एग्जाम्पशन मिला था वो एग्जाम्पशन अब नहीं मिल सकता आपको। दैट्स व्हाई उस साल का जो रिटर्न है उसको कौन ठीक करेगा? एओ। सो यू ऐसे ही हम नोट्स देने बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट दे हैव रिटन एज पर दिस सेक्शन, जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है 100% सब्सिडियरी को तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 साल वाला लॉकिंग पीरियड में आपको अगर 100% रिलेशनशिप सीजेस टू एग्जिस्ट तब वो कैपिटल गेन्स में होता है। उसके बाद वो करके दिखाया असेसमेंट ईयर 15-16 में क्या सिचुएशन होना चाहिए अब, क्योंकि उस टाइम में जो आप किए थे वो सही था, बट अब आपका 15-16 का ये सिचुएशन होना चाहिए एंड एओ कैन रेक्टिफाई इट। फिर आप 2021 में जो सिचुएशन है वो आप दिखा, उसका आपको नॉर्मल कैलकुलेशन दिखाना है। एंड द सेकेंड सम यू ट्राई इट विथड्रॉ। मैम ये हाँ ये सेकंड वाला पार्ट थोड़ा
एक बार समझा दीजिए तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड वाला का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड पार्ट वाला में कैपिटल गेन्स का वो 2021-22। 2021-22, हाँ उसका ही उसमें क्या था, वो एक्विजिशन कब किया है, सी 10 लाख का है और वो 10 लाख में किया था ना उसको एक्वायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख शेयर्स के लिए उसको 10 लाख पेमेंट करना पड़ा था। तो यू हैव टू फाइंड आउट 1000 शेयर्स का कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल में सिर्फ 1000 शेयर से आपको मतलब है। तो 10 लाख शेयर्स, अगर 50,000 शेयर्स 10 लाख में खरीदता है तो 1000 शेयर्स का क्या कॉस्टिंग आएगा आपका? 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 1000। ये तो आपको नॉर्मल आपका यूनिटरी मेथड से करना है। इफ आई डू दिस वे, 20,000 रुपया लगा होगा 1000 शेयर्स का। जी मैम। नाउ 20,000 का आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है। 20,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे आप? किस साल में आप एक्वायर किए थे शेयर्स? एक मिनट, you acquired the shares in the financial year 2002-3। तो 2-3 में जाके आप देखिए यहाँ पे 2002-3 दैट इज 10th December 2002 को आप एक्वायर किए थे। 10th December 2002 को व्हाट इज योर CII? इन द CII चार्ट आप देखेंगे 105 है, तो आपका 20,000 105 था तब 20,000 लगा था, तो अभी 301 है, तो कितना आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? तो मैं यस मैम। तो बस यही करके माइनस किया है। नेक्स्ट इज विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, हम ये कौन सा इसमें सेक्शन वाइज दे दिया है ना, इसका अंदर पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कौन सा विड्रॉवल का बात कर रहा है। जब कन्वर्शन होता है ऑफ अ फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इनटू कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और उसका कुछ कंडीशंस था। ये आप अगर पेज नंबर 245 246 में जाके पढ़ेंगे तो वी कवर्ड दिस कि जब कंपनी में ये लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप स्टॉक एक्सचेंज कोई भी अगर कंपनी में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस उसको फुलफिल करना पड़ता है। उस कंडीशंस को फुलफिल करने से ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बट सपोज अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा? अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो इट विल बी द सेम ट्रीटमेंट कि आपका जो गेन्स हुआ था, आपका जो एग्जेम्पशन मिला था, वो टोटल आपका इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए कंसीक्वेंस ऑफ विड्रॉवल एग्जेम्पशंस, जो भी आपको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रॉफिट एंड गेन्स हुआ था बट आप उसको चार्ज नहीं किए थे टैक्स में, क्यों नहीं किए थे? क्योंकि आपके था ही नहीं एप्लीकेबल, बिकॉज दैट इज नॉट अ ट्रांसफर, वो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, दिस इज सिंपल, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। Next, withdrawal, any transfer of capital assets or intangible on conversion of a private limited or unlisted company into LLP shall not be treated as transfer। लेकिन उसमें भी conditions था, अगर वो conditions आप violate कर देते हैं तो अगेन वही सेम चीज, जो भी आपको exemption मिला था वो taxable हो जाएगा जिस साल आप ये violation करेंगे। Next is C, a capital gain on transfer of shares of amalgamating company in lieu of shares of amalgamated company। ये भी हम लोग पढ़ा था कि जब एमलगमेशन हो रहा है तो एमलगमेटिंग कंपनी अगर एमलगमेटेड कंपनी को शेयर्स दे रहा है, उसका अपना शेयर्स खत्म करके अब एमलगमेटेड कंपनी का शेयर्स होगा,
तो इसको भी अपने ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। नाउ इसमें भी अगर वही है, however such transaction shall have the following tax impact, उसको अपने ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, स्टिल टैक्सेशन में उसका कुछ वर्किंग्स है, और वो वर्किंग्स किसके हाथ में होगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में। बिकॉज जब एमलगमेटिंग कंपनी, सपोज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों मिलकर एक नया कंपनी बनाएंगे एक्स वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड का अपना शेयर होल्डर्स है, वाई लिमिटेड का अपना शेयर होल्डर्स है, और एमलगमेटिंग कंपनी एक्स वाई लिमिटेड जो बन रहा है, वो जो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, नाउ दे विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड के भी जो शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो भी एक्स वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर बनेगा। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इन लोग का अपना अपना शेयर्स, अब यहाँ शेयर होल्डर्स, यहाँ पे इनका इसका शेयर होल्डर बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये तो इसका जो शेयर होल्डर्स था ना, वो लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना शेयर्स को खत्म करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि एक्स का शेयर का कोई वैल्यू नहीं रहता, और उसके बदले इनको एक्स वाई लिमिटेड का शेयर्स दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे अपना शेयर्स खत्म कर रहा है, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल गेन्स। ये जो शेयर होल्डर के साथ ये चीज हो रहा है, ये आपका कैपिटल गेन्स में आएगा। अब कैसे आएगा, सी ये जो शेयर होल्डर्स के यहाँ जो हो रहा है, ये आपको कैपिटल गेन्स में कैसे आएगा, ये जो शेयर होल्डर्स है ना, ये अगर किसी और को अपना शेयर सेल करता है, यू सी इन दिस एग्जांपल, मिस्टर जोसेफ हैज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, वो उसको एक्वायर किया था 17 अगस्त 2007 में थ्रू विल ऑफ हिज फादर। फादर का विल था, तो वो शेयर फादर से ट्रांसफर किसमें हो गया, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सॉरी ट्रांसफर किसको हो गया, मिस्टर जोसेफ को। अब his father acquired such shares on 17 जुलाई 2004, वो कहाँ से एक्वायर किए वो शेयर, किस दिन एक्वायर किए वो शेयर, 17 जुलाई 2004। नाउ थ्रू गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, अब वहां पे भी गिफ्ट है, मतलब एक्चुअली ये शेयर्स कौन खरीदा था, मिस्टर जेड खरीदा था, वो एज गिफ्ट मिस्टर नहीं, वो एज गिफ्ट किसको दिया, फादर ऑफ जोसेफ, और वो एज फिर उसको एज विल किसको दिए, मिस्टर जोसेफ। तो आफ्टर ये शेयर्स एक्चुअल एक्विजिशन ना इसके फादर के हाथ में है, ना ही जोसेफ के हाथ में है, एक्चुअल एक्विजिशन किसके हाथ में है, मिस्टर जेड। अब ये मिस्टर जेड एक्वायर किया था ऑन 18 अगस्त 2000, अब वो 18 अगस्त 2000 मतलब बिफोर योर बेस ईयर, योर बेस ईयर इज 2001-2 फॉर 20 ईच, 20 रुपया में वो एक्वायर किया था। तो आपका ऑन 1/4/2001 18 रुपया है, 17 जुलाई 2004 वो 25 रुपीज है, और 17 अगस्त 2007 वो 40 रुपीज है। अब 17 जुलाई 2004 जो है वो डेट आपके लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज वो क्या था, वो डेट ऑफ गिफ्ट है, उस दिन गिफ्ट दिया गया था। और 17 अगस्त 2007 भी आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, एज विल ट्रांसफर हुआ था। तो बाकी दो डेट्स आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक डेट देखना है, 1 अप्रैल 2001। 31 मार्च 2013 को एक्स लिमिटेड अमलगमेटेड विद वाई लिमिटेड, मतलब 2012-13 में एक्स लिमिटेड क्या करता है, अमलगमेशन ऑफ वाई विद वाई लिमिटेड, और amalgamated company issued 3 equity shares for every 2 equity shares of amalgamated company। Now यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ equal shares नहीं दिया, XYZ Limited क्या किया, issued 3 shares for every 2 shares, हर 2 शेयर्स के लिए 3 शेयर दिया गया। तो मिस्टर जोसेफ के पास 1000 शेयर्स था,
तो हर 2 शेयर्स के लिए कितना शेयर्स दिया गया है? 3। तो 1000 शेयर्स के लिए कितना शेयर दिया जाएगा? 1500 शेयर्स। मतलब मिस्टर जोसेफ को 1000 शेयर्स के बदले 1500 शेयर्स मिला ऑन एमलगमेशन। ठीक है। अब on 2nd April 2020, Mr. Joseph sold 1000 shares of Buy Limited to one of his friends for 38 rupees each. उसके पास टोटल कितना शेयर्स है? 1500। उसमें से वो 1000 शेयर्स क्या किया? बेच दिया। जब ये 2 के बदले 3 दिया जा रहा है, मतलब ये 1000 के बदले 1500 आया है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना गया बिकॉज एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेटेड कंपनी का शेयर होल्डर को दे रहा है। लेकिन ये वाला ट्रांजैक्शन जब हुआ 1500 शेयर्स में 1000 शेयर वो बेच दिया, तब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जोसेफ। और वहां पे एक चीज है, आपको अब ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, क्योंकि जोसेफ जब 1000 शेयर बेचेगा उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो 1000 शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। he never paid anything for that 1000 shares, तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पता नहीं है क्योंकि उसको बिल में मिला था और उसके फादर को भी वो एज गिफ्ट मिला था। तो अब वो कैसे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेगा? Now see, यहाँ पे when any shares become the property of assessee in the scheme of amalgamation, period of holding of shares in amalgamated company shall be aggregate of period of holding in amalgamating company. अब इसमें जो है amalgamated company, तो सपोज ये जिस दिन ये ट्रांसफर हो रहा है उस दिन बन रहा है, बट इसके पहले भी ये लोग अलग अलग कंपनी था, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो ये से यहाँ इतना दिन का हम लोग होल्डिंग लेंगे, एमलगमेशन के पहले का भी आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना पड़ेगा। हेंस इस केस में ये शेयर होल्डिंग कब से है इसके पास? 2007 से, मिस्टर जोसेफ के पास 2007 से है और एमलगमेशन हो रहा है 2013 में, मतलब इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा फॉर मिस्टर जोसेफ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे? हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है जोसेफ सोल्ड। अब जोसेफ सोल्ड तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो चाहिए टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कैसे निकालेगा? सी यहाँ पे बोलता है तो अपने प्रीवियस ओनर का, जो प्रीवियस ओनर है उस शेयर्स का, उसका कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके पापा ही फादर ही आल्सो टुक ऑन गिफ्ट, तो इन द हैंड्स ऑफ हिज फादर भी वो ट्रांसफर नहीं माना गया था बिकॉज वहां पे गिफ्ट है। तो अब ही हैज टू सी मिस्टर जेड के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर जेड जब खरीदा था अगस्त 2000 में, तब वो 20 रुपया में खरीदा था। 2000 इज बिफोर 2001 2002 और 2001 for 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू था 18 रुपया। लेकिन आपको क्या लेना है? whichever is higher, 20 रुपया और 18 रुपया, whichever is higher, तो आपको लेना है 20 रुपया। तो अब वही को लेके अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ेंगे। 1000 into 20, सपोज अपने मान लिए कि 20,000 रुपया इसका एक्विजिशन है, लेकिन एट प्रेजेंट उसके पास कितना शेयर्स है? 1500 रुपीज, 1500 शेयर्स, सॉरी एट प्रेजेंट उसके पास 1500 शेयर्स है, 1000 शेयर्स तो है नहीं। तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना पड़ेगा? उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेगा वो 20,000 डिवाइडेड बाय 1500। वो इसी इट इज डीम्ड कि यही 20,1500 का कॉस्ट है, क्योंकि वो कभी कॉस्ट पे नहीं किया और अमलगमेशन में उसको 2 शेयर के बदले 3 शेयर मिला है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस टाइम में भी कुछ नहीं लगा था। वो ड्यू टू अमलगमेशन उसके पास 500 शेयर्स एक्स्ट्रा आया है।
तो दैट मीन्स उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 ही है, और हम लोग यही पकड़ेंगे कि 20,000 इज हिज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो 1500 शेयर्स, आप अगर 20,000 1500 मतलब एक शेयर का 13.33 आएगा, और ये 13.33 इंटू 1000, क्योंकि वो 1000 शेयर्स बेच रहा है, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेगा वो जब बेचने का कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेगा 13,330, और फिर इसका वो इंडेक्सेशन करेगा। अब वो इंडेक्सेशन कैसे करेगा? सी, इंडेक्सेशन होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 12-13, बिकॉज एमलगमेशन कब हुआ था? 12-13 में। इस तो उसका 1000 शेयर्स 1500 शेयर का बना इन द ईयर 12-13, इसीलिए एक्विजिशन में उसके लिए एक्विजिशन है 12-13, और इंडेक्सेशन भी होगा 12-13 का सीआईआई से। So whatever is the CII of 12-13, उसी उसी ईयर का सीआईआई से आपको इंडेक्सेशन करना है। तो उसको एट फ्रॉम विल वो शेयर्स मिला था 2007 में, तो एक्चुअली इंडेक्सेशन कब से होना चाहिए? 2007 में, लेकिन वो इंडेक्सेशन वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना शेयर्स को बेस पकड़ के निकाला है? 1500, और वो 1500 शेयर्स किस दिन 1500 बना? इन द ईयर 12-13, तो इसीलिए उस 1500 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकला हुआ है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन भी 12-13 से ही होगा। दिस यू हैव टू डू, मतलब 13,330 और 12-13 का मतलब 200, जब सीआईआई 200 था तब आपका कॉस्टिंग कितना आया था? 13,310, तो 301 में आपका क्या कॉस्टिंग आएगा? दिस यू हैव टू माइनस फ्रॉम टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन कितना है? 1000 शेयर बेचा है 38 रुपीज करके। So this will give you capital gains, long-term capital gains in the hands of Mr. Joseph. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो cost of acquisition है, it will be divided by the added value of your amalgamation. Amalgamation के बाद जो आपका added value of shares है, that is 1500, उसको डिवाइड करके आपको cost of acquisition निकालना है, और उस साल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आपको लेना है जब आपका जिस फिगर से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं, 1500 से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब योर ईयर बिकम्स 12-13, इसीलिए इंडेक्सेशन भी होगा फ्रॉम द ईयर 12-13। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल गेन ऑन कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। जब आप डिवेंचर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू शेयर्स, then it will not be treated as transfer. Cost of acquisition of new asset, cost of old asset मतलब जो convertible debentures है shall be taken, उसी को आप cost of acquisition ले लीजिएगा new asset को। और इंडेक्सेशन बेनिफिट, जब न्यू एसेट मतलब शेयर का जब जिस साल आपको कन्वर्ट हुआ था शेयर में, उस साल से आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स से जब शेयर्स बना, तो आपका जिस साल में शेयर्स बना, तो आप जब वो शेयर कभी ट्रांसफर करेंगे इन फ्यूचर, तो यू हैव टू टेक द इंडेक्सेशन सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच आपका वो डिबेंचर शेयर बना है। आप डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स आप पढ़ा था पीजीबीपी में भी, व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स? जो बॉन्ड्स आपको इंटरेस्ट नहीं देता थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, और ये आपको होल्डिंग, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स है। जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, पीजीबीपी में पढ़ाया था, नॉट इन फर्स्ट क्लास कि नहीं सॉरी, जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ऑफ कैपिटल गेन्स, तो उसमें आई सेड कि कुछ कैपिटल एसेट्स का 1 साल होता है शॉर्ट टर्म, उसके बाद इफ यू सेल इट बियॉन्ड 1 ईयर तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो वैसे ही जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर आप विद इन 1 ईयर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा,
और अगर 1 ईयर के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। See, tax impact on sale of redemption or maturity of zero coupon bonds shall be as under. Redemption price, maturity value जो भी आप वो आप sale consideration, cost of acquisition as usual. Indexation benefit नहीं रहेगा, bonds debentures indexation benefit नहीं रहेगा और long term capital asset होगा। और इसका जो rate होगा ना आप जिस पे tax देंगे, capital gains में आपको long term के लिए 10% tax देना पड़ता है और शॉर्ट टर्म के लिए 15% टैक्स देना पड़ता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपको अगर लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें आपका जो स्लैब था अप टू 2,50,000 जितना भी होता है, फिर रेट इज नील 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, वो स्लैब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एप्लीकेबल नहीं होता। इन दीज केसेस यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो जितना इनकम आपको जीरो कूपन बॉन्ड से आया है ऑन रिडेम्पशन, आप वो अपना टोटल इनकम से माइनस कर दीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज आपका टोटल इनकम है 10 लाख और इसमें जीरो कूपन बॉन्ड से इनकम है सपोज 2 लाख। दिस 2 लाख इज इंक्लूडेड इन 10 लाख। तो आप क्या करेंगे, आपको दो पार्ट में इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका नॉर्मल इनकम 8 लाख और दूसरा आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स का इनकम 2 लाख। इस 2 लाख पे अगर लॉन्ग टर्म है तो 10% टैक्स और अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% टैक्स। और ये 8 लाख पे आपका स्लैब होगा, मतलब 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख तक 5% और फिर 3 लाख तक 20%. This becomes the way how you will calculate your taxation. जब आपके इनकम में कैपिटल गेन्स का इनकम है, ये 2 लाख अलग से टैक्सेबल होगा और ये 8 लाख इस स्लैब में टैक्सेबल होगा। Okay. Now next is ESOP, Employee Stock Option Plans. ESOP क्या है? ESOP का अगर आप अकाउंटिंग किया होगा या लॉ में पढ़ा होगा, ESOP is shares given to employee. Now suppose आप कोई कंपनी में एम्प्लॉई है और वो कंपनी शेयर्स इशू करना चाहता है अपना एम्प्लॉई को, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स जो इशू होता है दैट माइट बी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, वो अपना कंपनी को अपना एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स दे सकता है। और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स है, एक वर्ड है एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन एंड एक वर्ड है व्हेन योर ऑप्शन वेस्ट्स। अब ये दोनों वर्ड क्या है, एक्सरसाइज योर ऑप्शन मतलब सपोज इसका कुछ कंडीशंस है, आप अगर 5 साल उस कंपनी में, दिस इज नॉट अ बुकिश कंडीशन, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज आप एक कंपनी में 5 साल काम करते हैं, तो उसके बाद आपका कंपनी लेके आता है एक ऑप्शन कि आई विल बी गिविंग शेयर्स टू द एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 इयर्स। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एक्सरसाइज कौन कर सकता है, पहला लाइन में सिर्फ वो एम्प्लॉइज आए जो 5 साल से ज्यादा काम किए हैं, उस पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और उसके बाद सपोज और उसके बाद एक वर्ड आता है वेस्ट योर ऑप्शन। वेस्ट का मतलब दिस ऑप्शन, सपोज एक्सरसाइज का जगह पे आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ऑप्शन। आपको शेयर्स दिया जा रहा है, इफ यू डोंट वांट टू परचेज शेयर यू कैन रिजेक्ट योर ऑप्शन, और आप उसको एक्सरसाइज मत करिए। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद वेस्टिंग होने में सपोज और 2 साल है, मतलब 2 साल तक आपका एम्प्लॉयर बोल सकता है कि ये कुछ कुछ कंडीशंस है, if these conditions are fulfilled 2 साल बाद आपको वो शेयर्स वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा मतलब तब आप वो शेयर्स खरीद सकते हैं। पहला इज एक्सरसाइज,
इफ यू डोंट एक्सरसाइज, आपका कहानी यही खत्म हो जाता है, आप रिजेक्ट कर दिया अपना वो जो ऑफर था आप उसको रिजेक्ट कर दिया। बट सपोज आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये वेस्ट होता है सपोज 2 साल, और ये आपका एम्प्लॉयर बोले 2 साल में ये कंडीशंस फुलफिल होने से आपके पास ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, मतलब दीज शेयर्स विल बी गिवन टू यू। ओके, these shares will be given to you. This is the difference between exercising the option and vesting of option. कब आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और कब आप पे वो ऑप्शन वेस्ट होगा। बट यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, उस डेट के अंदर होने से आपका एक अलग तरीका से टैक्सेबल होगा और उस डेट के बाद होने से आपका अलग तरीके से टैक्सेबल होगा। See, up to financial year 2008-9, but other than 99-2000, मतलब कभी से भी जब से स्टार्ट होता है तब से अप टू 2008-9 एक तरीके का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन उसमें 99-2000 छोड़ के, नॉट दैट ईयर, मतलब 2008-9 में आपका 99-2000 भी आ रहा है बट वो ईयर नहीं काउंट किया जाएगा, उसके लिए एक प्रोविजन है। और 99-2000 वो साल जो यहाँ पे छोड़ दिया है, वो साल प्लस 2008-9 के बाद आफ्टर 2008-9, एक है आफ्टर 2008-9 और एक है आफ्टर 2008-9, लेकिन अप टू 2008-9 में 99-2000 भी आता है, वो नहीं जाएगा, वो किसके साथ जाएगा, आफ्टर 8-9, वो एक साल अलग है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अगर अप टू 2008-9 है तो टैक्स ट्रीटमेंट अंडर द हेड सैलरीज में एज परक्विजिट्स नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर 2008-9 के बाद आपको ईसॉप मिलता है तो उसको सैलरीज में एज परक्विजिट्स काउंट किया जाएगा। और कैपिटल गेन्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले वाला में 2008-9 में सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी 2 डेट्स हैं, अगर शेयर्स आर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2007 तो जो शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉय, जिस प्राइस में शेयर्स आपको दिया गया है वो प्राइस आप ले लीजिए। इफ शेयर्स आर अलॉटेड आफ्टर 1/4/2007 बट बिफोर 2009, 3 डेट हो गया, एक अप टू 2007, एक आफ्टर 1/2007 बट बिफोर 2009, उसके बाद नॉर्मल। वहां पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ सच शेयर्स अगर आफ्टर 2017 है, मतलब ये वाला अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ सच शेयर्स ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन वेस्ट्स विद द एम्प्लॉय। अगर पहले है तो जिस प्राइस में आप शेयर को देंगे वो प्राइस लेना पड़ेगा, लेकिन सपोज अगर 2007 के पहले का बात है तो द डेट ऑन विच इट वेस्ट्स ऑन एम्प्लॉय। Suppose the option in this example vests on 10th March 20 और आपको शेयर्स मिलता है 15th March 20, तो पहले होने से अगर इट इज शेयर्स आर अलॉटेड बिफोर 1/4/2007 तो आप इस दिन जिस दिन अलॉट होगा, जितने में अलॉट होगा वो प्राइस से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। अगर 2007 के बाद है बट अप टू 2009 तब आपका ये ऑप्शन जिस दिन वेस्ट हुआ था, वेस्ट कब हुआ था, 10th मार्च, इस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, ये डेट और ये प्रोविजन आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज है। ईसॉप में देयर आर मेनी डेट्स। ये क्या था, सोल्ड बाय एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय सॉरी एसेट्स आर सोल्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अपना जो उसको मिला ना शेयर्स वो उसको बेच रहा है, तब ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, सच एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉय। नेक्स्ट केस है, सपोज एम्प्लॉय वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करता है एज गिफ्ट, तो एज अगर गिफ्ट ट्रांसफर करता है तो भी आपका ये सेम है, 1/4/2007 के पहले आप लेंगे एक्चुअल कॉस्ट और एलोकेशन, और अगर अलॉट करता है आफ्टर 1/4/2007 तो जिस दिन आपका ऑप्शन वेस्ट हुआ था उस दिन जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको लेना पड़ेगा फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
एंड अगर these shares are issued in previous year 99 2000 और after 1/4/2009, तब आपका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? अंडर दी हेड सैलरीज एज परक्विजिट। और कैपिटल गेन्स कब होगा? जब वो शेयर्स क्या करता है? बेचता है। कंपनी के लिए सैलरीज में जाएगा एज परक्विजिट, और जब बेचते हैं मतलब आपको जब एम्प्लॉय को जब रिसीव हो रहा है तब सैलरीज वाला हेड इफेक्ट होता है। पहले वाले में सैलरीज वाला हेड कभी नहीं इफेक्ट होता था। जब एम्प्लॉयज को रिसीव होता था तभी भी कुछ हेड इफेक्ट नहीं होता था, सैलरी में नहीं आता। लेकिन जब एम्प्लॉय वापस बेचता है तब पहले वाले हेड में भी कैपिटल गेन्स था, अभी भी कैपिटल गेन्स है, बट पहले में वापस इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डेट्स, एक 2007 के पहले, एक 2007 से लेकर 2009 तक। एक तो या एम्प्लॉय बेचता है या एम्प्लॉय गिफ्ट देता है, वो केस था। और यहाँ पे भी वही केस है कि सपोज एम्प्लॉय बेचता है और गिफ्ट देता है। तो गिफ्ट देता है तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन एक्सरसाइज हुआ, यहाँ पे दोनों ही फेयर मार्केट वैल्यू होगा जिस दिन एक्सरसाइज हुआ। वहां पे क्या था? एक बार एक्चुअल कॉस्ट था, एक बार आपका वेस्टिंग वाला ऑप्शन था। लेकिन आफ्टर 2009 जो भी आपको ESOP में शेयर्स मिला होगा उसको अगर आप बेच देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का डेट अलग होगा फ्रॉम वेस्टिंग डेट। कि सपोज ये 10 मार्च 20 है तो ये 10 मार्च 18 है, तो ये एक्सरसाइज का डेट आपको लेना पड़ेगा, नॉट द डेट ऑफ वेस्टिंग। These you have to learn। यहाँ पे ये डेट्स आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। Next is capital gain on transfer of shares in demerged company or resulting company। अगर demerged company में आप shares transfer कर रहे हैं, क्यों shares transfer कर रहे हैं? Because आपको resulting company का shares मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या होगा रिजल्टिंग कंपनी के लिए? कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रिजल्टिंग कंपनी। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ओरिजिनल शेयर्स के साथ, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हिच यू हैव ट्रांसफर्ड टू रिजल्टिंग कंपनी। और या फिर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर सच ट्रांसफर। बिफोर सच डीमर्जर नेटवर्थ में क्या आता है? योर शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व्स। और डीमर्ज्ड कंपनी के लिए आपका कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, उसमें से यू हैव टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग शेयर्स। मतलब रिजल्टिंग कंपनी का जो शेयर्स आप ऊपर कैलकुलेट किए वो आपको माइनस करना है ओरिजिनल शेयर से। जो बचता है वो ही डीमर्ज्ड कंपनी के लिए कॉस्ट होता है। बिकॉज डीमर्ज्ड कंपनी का जो पहले जो शेयर्स था वो शेयर्स था और रिजल्टिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन आया, दोनों का डिफरेंस becomes the cost for demerged company. Now how you will determine resulting company या demerged company दोनों लॉन्ग टर्म है कि नहीं शॉर्ट टर्म है, ये कैसे डिटरमाइन करेगा? The period of holding shall be calculated from date of acquisition of original shares in demerged company। मतलब demerger के पहले जो आप वो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको लेना पड़ेगा फाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब रिजल्टिंग कंपनी सपोज XY लिमिटेड, दो कंपनी था, वो लोग अपने आप में देयर इज नो, अब वो लोग एक साथ नहीं रहता, अलग हो जाता है। तो डिमर्जर अगर होता है वो लोग का तो दे बिकम टू कंपनीज X एंड Y। तो X एंड Y जब दो कंपनी बन जाता है तो आपका जो यहाँ पे है ना कि रिजल्टिंग कंपनी पीरियड ऑफ होल्डिंग, X के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा और Y के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जब आप डिमर्जर के पहले का टाइम भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब जब आप एक साथ थे XY लिमिटेड था उस टाइम का भी होल्डिंग पीरियड आपको लेना पड़ेगा while calculating period of holding for both X limited and Y limited।
इंडेक्सेशन बेनिफिट कब से होगा? रिजल्टिंग कंपनी वेर एक्वायर्ड बाय द एसएससी। रिजल्टिंग कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट होगा इन विच शेयर्स इन द ईयर इन विच शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी वेर एक्वायर्ड बाय द एसएससी। और डिमर्ज्ड कंपनी का क्या होगा? फ्रॉम द ओरिजिनल शेयर्स इन डिमर्ज्ड कंपनी वाज एक्वायर्ड। पहले वाले के लिए जो डिमर्जर के पहले वाले शेयर होल्डर्स है वो लोग कब तक का इंडेक्सेशन लेगा? जब वो डिमर्ज कंपनी के पहले डिमर्जर के पहले जब से शेयर्स होल्ड कर रहा है तब का लेगा। और रिजल्टिंग कंपनी कब लेगा? बाद में, जब रिजल्टिंग कंपनी नया कंपनी बन गया उसके बाद अगर आप शेयर्स खरीदे तो आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा योर इंडेक्सेशन बेनिफिट। Next is capital gain on transfer of shares or debentures by non-resident. शेयर्स और डिबेंचर कौन ट्रांसफर कर रहा है? नॉन रेजिडेंट। मतलब दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है बाय नॉन रेजिडेंट। कैपिटल एसेट चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो या फिर डिबेंचर्स भी हो सकता है। इन ऑफ एन इंडियन कंपनी इज एक्वायर्ड यूजिंग फॉरेन कंपनी। ऑब्वियसली अगर नॉन फॉरेन करेंसी सॉरी अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके पास इंडियन करेंसी तो होगा नहीं, वो फॉरेन करेंसी से ही एक्वायर करेगा। Proviso shall also be applicable in respect of capital gains accruing or arising on transfer of shares or debentures of Indian company acquired through reinvestment। मतलब ये जो प्रोविजन है ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा जब आप कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स व्हिच इज अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड थ्रू रीइन्वेस्टमेंट। मींस आपके पास ओरिजिनल शेयर्स था उसका पैसा को रीइन्वेस्ट करके अगर आप वापस कोई शेयर एक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में भी ये प्रोविजन ऑफ दिस नॉन रेजिडेंट इज एप्लीकेबल। एसेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। और ये प्रोविजन यूटीआई और म्यूचुअल फंड्स में नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है शेयर्स और डिबेंचर्स। इसका मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि यूनिट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ भी आप कहीं भी डील मत करिएगा कि टैक्स में ये नहीं लिखा हुआ है मतलब वो भी हम लोग ले लेंगे। जहाँ जो लिखा है वो उस पे ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे शेयर्स डिबेंचर्स लिख दिया है मतलब सिर्फ शेयर्स डिबेंचर्स पे ही एप्लीकेबल है, नॉट यूनिट्स। जैसे बायबैक में हम लोग पढ़े थे जो सिक्योरिटीज वाला प्रोविजन था वो सिक्योरिटीज पे ही एप्लीकेबल है। उसमें अलग से लिखा था कि शेयर्स के लिए एग्जेम्प्ट है। तो डोंट थिंक कि शेयर सिक्योरिटीज बोल दिया तो शेयर्स भी दे देंगे, वहाँ अदर देन शेयर्स है मतलब दैट प्रोविजन इज नॉट फॉर शेयर्स। जो जिसके लिए है वो उसके लिए ही है। यहाँ पे शेयर्स डिबेंचर्स लिखा है मतलब ओनली शेयर्स डिबेंचर्स, नो यूनिट्स। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अबव एसेट shall be computed as a। अच्छा ठीक है, अभी ये सारा शेयर्स और डिबेंचर्स अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? इफ यू सेल इट तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन expenditure on transfer and sale consideration shall be converted into the same foreign currency as was initially utilized। मतलब सपोज आपका रीइन्वेस्टमेंट आप जब करते हैं इंडियन रुपये में करते हैं तो वैसे नहीं, और या फिर यू हैव नॉर्मल फॉरेन करेंसी लेकिन आप ट्रांसफर जब कर रहे हैं आप ऐसे जगह पे कर रहे हैं जहां आपको कोई और करेंसी मिल रहा है। सपोज यू आर अ पर्सन इन यूएस, जो आप शेयर्स एक्वायर किए थे तो डॉलर्स में एक्वायर किए थे, जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो समवन फ्रॉम यूके तो आप पाउंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे अलग करेंसी आप नहीं रख सकते, आपको सेम करेंसी रखना है। मतलब जिसमें आप एक्वायर किए थे उसी में कन्वर्ट करना है पाउंड्स दूसरा करेंसी को। मतलब अगर पाउंड्स में ट्रांसफर कर रहे हैं टू अ पर्सन हु इज फ्रॉम यूके एंड ही इज गिविंग यू पाउंड्स तो आपको वो पाउंड्स कन्वर्ट करना पड़ेगा इन डॉलर्स। ऑब्वियसली सेम करेंसी जब तक नहीं रहेगा तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? कोई भी दो चीज को कंपेयर करने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसीलिए डॉलर्स को पाउंड से यू कैन नॉट कंपेयर, तो दोनों करेंसी आपका सेम होना चाहिए, डॉलर्स एंड डॉलर्स और पाउंड या पाउंड दोनों आपका सेम होना चाहिए। और जो कैपिटल गेन्स होगा ना फॉरेन करेंसी में वो कन्वर्ट हो रिकन्वर्ट किसमें करेंगे आप? इंडियन करेंसी में। बिकॉज अगर आप कैपिटल गेन्स तो आपको कौन चार्ज कर रहा है? इनकम टैक्स। दिस इज ऑफ इंडिया
तो फाइनली आपको सारा जितना भी काम करना है कर लीजिए। ट्रांसफर अगर हो रहा है फॉरेन करेंसी में, आप लोग ट्रांसफर करना है जो करना है कर लीजिए, बट फाइनली फॉर कैपिटल गेन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी। नहीं तो आपको इंडियन करेंसी अगर नहीं ट्रांसफर, मतलब अगर आप उसको इंडियन करेंसी में नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैपिटल गेन्स कितना है एज पर इंडियन करेंसी। इंडेक्सेशन नहीं होता है, नॉन रेजिडेंट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और ये मेथड ऑफ कंप्यूटेशन इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। आपको ये जब नॉन रेजिडेंट का केस है तो ये मेथड ही फॉलो करना है, देयर इज नो ऑप्शनल मेथड। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई मेथड आप फॉलो कर ले, आपको इसी मेथड में जाना पड़ेगा। फर्स्ट यू ट्रांसफर अनदर फॉरेन करेंसी इनटू द करेंसी in which the shares were originally acquired, और उसके बाद उसको आप इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करेंगे एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा? सी सेल कंसिडरेशन, फाइंड सेल कंसिडरेशन इन इंडियन करेंसी एंड कन्वर्ट इट इनटू फॉरेन करेंसी। आपको सेल कंसिडरेशन इंडियन करेंसी में निकालना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। अब आप इंडियन करेंसी कैसे निकालेंगे, कैसे आप कौन सा रेट से निकालेंगे? ये सब कन्वर्शन रेट आपको कौन सा लेना पड़ेगा? एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन आपको एवरेज एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा। Now what is average? Average जब बोल दिया है it means यहाँ पे दो या उससे ज्यादा फिगर है, नहीं तो एवरेज आप नहीं कर सकते। अब दो डेट कौन सा आएगा? It is the average of telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate, जिसको TTBR and TTSR बोलते हैं। Now these rates are the rates which are given to you at the time of buying selling। आपको ये rates पता चल जाएगा। It is this information will be given to you by your stock exchange। जब आप transactions करेंगे आपको telegraphic transfer buying rate and telegraphic transfer selling rate पता चल जाएगा। उसका जो rate रहेगा, you have two rates, एक TTBR plus TTSR divided by 2। This gives you the average। इस एवरेज रेट से आप इस एवरेज रेट से आप कन्वर्ट करेंगे सेल को, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में। इंडियन करेंसी को ट्रांसफर करना है फॉरेन करेंसी में, तो आपको दो रेट्स चाहिए, TTBR एंड TTSR। इसका एवरेज से ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज फाइंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर भी आपको निकालना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, और फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में अगेन कैसे कन्वर्ट करेंगे? एट एवरेज एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, नॉट द डेट ऑन व्हेन एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड। अगेन यू हैव टू टेक दिस रेट TTBR TTSR, लेकिन आप इस बार कौन से दिन का TTBR और TTSR लेंगे? जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन का TTBR और TTSR आपको लेना है। You cannot take the date on which you made the expenditure। एक्सपेंडिचर जिस दिन किए थे उस दिन का TTBR और TTSR आप नहीं ले सकते। जिस दिन सेल किए थे उसी दिन का आपको लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप क्या करेंगे? यही करेंगे इंडियन करेंसी में, you have to find out in Indian currency then convert into foreign currency at average exchange rate on date of acquisition। date of acquisition का TTBR TTSR लेना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सेल कंसिडरेशन में फिर आपका नॉर्मल है, ओनली द कन्वर्शन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि सेल कंसिडरेशन होने से कौन सा डेट का रेट लेना है। एक्सपेंडिचर देखिए, सेल का डेट विल बी सेल का डेट, एक्सपेंडिचर का डेट विल बी सेल का डेट, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वापस ओरिजिनल डेट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट है। कैपिटल गेन्स निकल जाएगा आपको। कैपिटल गेन्स में ये कन्वर्शन रेट एप्लीकेबल नहीं है। कैपिटल गेन्स आपका निकल गया इन फॉरेन करेंसी।
क्योंकि आप इतना बार जो कन्वर्ट किए यहाँ पे तो आपको सबका फॉरेन का रेट्स मिल गया है, तो उससे आपको फॉरेन वाला अगर आप लेंगे तो आपका कैपिटल गेन्स फॉरेन में भी आ जाएगा, फॉरेन करेंसी में भी आ जाएगा, क्योंकि इंडियन करेंसी से जो कैपिटल गेन्स निकलेगा वो आपका इंडियन करेंसी का कैपिटल गेन्स है। जब आप उसी रेट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉरेन करेंसी तो जो माइनस करके फिगर आएगा दैट इज योर कैपिटल गेन्स इनटू इन फॉरेन करेंसी। टैक्सेबल कैपिटल गेन, अब ये कैपिटल गेन जो आप कन्वर्ट किए हैं फॉरेन करेंसी से, नाउ व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड यहाँ पे, ये कैपिटल गेन आपको निकालना है फॉरेन करेंसी से। ठीक है, आपका फॉरेन करेंसी से निकला है बिकॉज आप हर बार रेट से उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किए हैं। तो जो फॉरेन करेंसी का कैपिटल गेन्स है ना, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी बाय यूजिंग बाइंग रेट, मतलब सिर्फ टीटीबीआर, इसमें अब आपको टीटीएसआर नहीं चाहिए, टीटीबीआर सिर्फ आपको मिलेगा और टीटीबीआर से आप उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल गिव यू इन इंडियन करेंसी। नाउ टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग सेलिंग रेट क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी, इज द रेट ऑफ एक्सचेंज अडॉप्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपको वो बैंक अवेलेबल करवा देगा एंड यू हैव टू टेक ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई सेड यू कि कहीं भी आपको अगर स्टैंडर्ड बैंकिंग का बात आएगा हमेशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आएगा उसका एग्जाम्पल में, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही कंसिडर किया जाता है टू कंपेयर ऑल द रेट्स। जितना भी ये बाइंग सेलिंग रेट होगा यू हैव टू यूज दैट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस दिन यूज कर रहा है। ऐसे नॉर्मली रेट्स हमेशा सेम ही होगा, ऐसा नहीं होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रेट यूज कर रहा है और दूसरा बैंक दूसरा, आज का जो कन्वर्शन रेट है वो सेम है, बट जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर रहा है विद इट कैन बी विद माइन्यूट डिफरेंसेस, लेकिन आपको वही रेट लेना है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर रहा है। तो दिस 3-4 थिंग्स आपको इसमें याद करना है। इस सेक्शन में फॉरेन एक्सचेंज वाला में कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल है, आपको सेल में से एक्सपेंस माइनस करना है और एक्विजिशन माइनस करना है और इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, इंप्रूवमेंट का यहाँ पे कोई बात नहीं है, बट ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर इज द रेट्स, कौन सा रेट से करना है। एंड सी आप हर बार इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में, आपको फाइनली कैपिटल गेन्स चाहिए किस करेंसी में था, इंडियन करेंसी में, एज पर टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन्स आपको इंडियन करेंसी में देना है, लेकिन फिर भी बार बार इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा रहा था। फर्स्ट केस में एवरेज टीटीबीआर टीटीएसआर से कन्वर्ट करो, फिर एक्सपेंस को भी कन्वर्ट करो, कैपिटल गेन्स को भी कन्वर्ट करो, फिर कन्वर्ट करके जो रेट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा आपका, वो अमाउंट को फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, मतलब स्टार्टिंग से यू कैन नॉट डू इट कि इंडियन करेंसी में किया जो डिफरेंस आएगा दैट इज कैपिटल गेन्स इन इंडियन करेंसी। नो, आपका इंडियन करेंसी से जो आ रहा है कैपिटल गेन्स आपका इंडियन करेंसी से भी आया होगा, फॉरेन करेंसी से भी आया होगा, लेकिन आपको फॉरेन करेंसी वाला कैपिटल गेन्स को कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी से बाय यूजिंग टीटीबीआर। तो डायरेक्ट जो आपका कैपिटल गेन्स आया इंडियन करेंसी से वो आपका कैपिटल गेन्स हो सकता है फॉर इंडियन करेंसी, बट उस पे टैक्स नहीं देना है। टैक्स किस पे देना है, जो आपका फॉरेन करेंसी से आएगा उसको आप टीटीबीआर से कन्वर्ट किए तो आपको जो आता है वो इज योर कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स। ओके, लेट इट बी हियर टिल हियर। और अब जो आपका टैक्स क्लास आफ्टर पूजाज होगा तो कीप रिवाइजिंग, 4 दिन 5 दिन का छुट्टी मिल रहा है, कीप रिवाइजिंग टैक्स इफ यू आर गिविंग दिस एग्जाम फॉर टैक्स ऑल्सो, और वी विल स्टार्ट आफ्टर पूजाज फ्रॉम जो बचा हुआ पार्ट है आपका एग्जामिनेशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज असेट्स। ओके ओके, आज और कोई क्लास भी नहीं होगा, आपका टैक्स क्लास वाज द लास्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी पूजा। थैंक यू मैम।